السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آئیے ہم اپنے آج کے تیسرے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پچھلے دو اسباق کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گی۔ پہلا سبق تھا ہمارا توحید، جس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں پڑھا تھا، سوال جواب کیے تھے، معروضی سوالات کیے تھے۔ دوسرا سبق ہمارا رسالت تھا، جس میں ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور تمام انبیاء پر نازل ہوئی کتابوں کے بارے میں پڑھا تھا اور ان کی تعلیمات کے بارے میں پڑھا تھا، سوالات کے جوابات کیے تھے اور معروضی سوالات کیے تھے۔ آئیے آج کا سبق دیکھ لیتے ہیں کہ آج ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں۔ جی، آج کا ہمارا سبق ہے نماز۔ نماز جو کہ صفحہ نمبر 26 تا 28 پر موجود ہے۔ آپ اس سبق کو اپنی کتاب میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ آمادگی کے لیے آپ سے چند سوالات کیے جائیں گے۔ سوالات یہ ہیں: ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ یقیناً آپ اس کا جواب جانتے ہوں گے، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ دن میں کون سی عبادت 5 مرتبہ فرض ہے؟ یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ دن میں 5 مرتبہ ہم پر جو عبادت فرض ہے وہ ہے نماز۔ ہم مسلمان کس کا حکم مانتے ہیں؟ یقیناً اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں۔ آگے دیکھیے، آج کے مقاصد، یعنی آج کے سبق سے ہم کیا حاصل کریں گے۔ سبق کے آخر میں طلباء اس قابل ہوں گے کہ مشکل الفاظ کے معنی جان سکیں، باہمی تعاون اور ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوگا، نماز کی اہمیت و فضیلت سے آگاہ ہوں گے۔ نماز کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز ایک فرض عبادت ہے۔ نماز ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ہر نماز کا وقت مقرر ہے۔ وقت پر نماز ادا کرنے سے نظم و ضبط اور وقت کی پابندی کی عادت پیدا ہوتی ہے۔ تھوڑی سی وضاحت کر دوں، نماز دین کا ستون ہے، یعنی نماز بنیاد ہے۔ ہمارے ارکان اسلام میں سے نماز اس کا ایک پہلا اور اہم ترین رکن ہے۔ نماز ان ارکان میں ایک ستون کی حیثیت سے ہے، یعنی مینار کی حیثیت سے ہے۔ جس طرح ایک چھت ایک عمارت کو کھڑا کرنے کے لیے پلرز کی ضرورت ہوتی ہے، میناروں کی ضرورت ہوتی ہے، ستونوں کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ارکان اسلام کی عمارت کو کھڑا کرنے کے لیے بھی ان ارکان کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں پہلا ہے نماز۔ نماز ہم سب پر فرض ہے، چاہے انسان بیمار ہے یا تندرست ہے، اس پہ ہر حالت میں نماز کو ادا کرنا فرض ہے، مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نماز کو اپنے مقررہ وقت پر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر نماز کو اس کے وقت پر، یعنی مقررہ وقت پر جب اذان ہوئی ہے اور فوراً ہم نماز نہیں پڑھتے اور تھوڑا سا تاخیر کر کے، تھوڑی سی دیر کر کے نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح ہم نماز کو تھوڑا کر کے لیٹ کرتے جاتے ہیں، دیر کرتے جاتے ہیں، تو اس کا ثواب کم ہوتا جاتا ہے۔ یعنی وقت پر نماز ادا کرنے سے پورا ثواب ملتا ہے، پھر جیسے جیسے ہم اس میں تاخیر کرتے جائیں گے، اس میں ہم دیر کرتے جائیں گے، تو ہمیں اس کا کم ثواب ملتا جائے گا۔ اسی طرح اگر ہم وقت پر نماز ادا کریں گے تو اس سے نظم و ضبط کی عادت پیدا ہوگی اور ہمیں وقت کی پابندی کی عادت بھی پیدا ہوگی۔ یعنی نماز کو اگر وقت پر ادا کریں گے تو یہ ہمیں خود بخود سکھا دے گی کہ ہمیں اپنے باقی کاموں کو بھی وقت پر کرنا ہے۔ جیسے ہر کام کا وقت مقرر ہے، اسی طرح نماز کا وقت بھی مقرر ہے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ نمازوں کی تعداد، یعنی نمازیں کتنی ہیں؟ نماز فجر، نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب اور نماز عشاء، یعنی 5 نمازیں ہیں۔ نمازوں کے اوقات، یعنی نمازوں کے کون کون سے وقت ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ فجر کا وقت صبح صادق سے سورج نکلنے تک، یعنی فجر کا وقت رہتا ہے صبح، ابھی جس طرح سے سورج ابھی نکلنا شروع ہوتا ہے، یعنی بہت صبح کا وقت کہ ہلکی سی سورج کی کرنیں نکلنا معلوم ہوتی ہیں، پتہ لگنے لگتا ہے کہ اب دن چڑھنے والا ہے، تب سے لے کر سورج نکلنے تک، تب تک نماز کا وقت رہتا ہے، اور اس کے بعد فجر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ ظہر کا وقت زوال آفتاب کے بعد شروع ہوتا ہے، یعنی
ज़ोहर का वक्त तब शुरू होता है जब बिल्कुल सूरज सर के ऊपर आ जाता है। जब आप देखें कि आपका साया बिल्कुल आपके करीब ही है, उस वक्त ज़ोहर का वक्त शुरू हो जाता है। उसके बाद है असर का वक्त, सूरज गुरूब होने से पहले तक। सूरज जब गुरूब होने लगता है, हमारे साए लंबे होने लगते हैं, तो असर का वक्त जो है वो ख़त्म हो जाता है। मगरिब का वक्त सूरज गरूब होने से शुरू होता है। ये मगरिब का वक्त कब शुरू होता है? जब सूरज गरूब होने लगता है, यानी आसमान पर बहुत हल्की सी रोशनी रह जाती है सूरज की, उस वक्त उसका वक्त ख़त्म हो जाता है। इशा का वक्त सुबह होने तक, इशा का वक्त सुबह होने तक यानी तहज्जुद के वक्त तक होता है, लेकिन बात वही है कि अगर नमाज़ों को उनके वक्त पर अदा किया जाएगा तो ही हमें उसका पूरा सवाब मिलेगा। आगे देखिए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात यानी नमाज के बारे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या फरमाया है। नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, यानी नमाज पढ़ने से मेरे आंखों को, मेरे दिल को, मेरे जिस्म को सुकून मिलता है, मेरे दिमाग को राहत मिलती है, मेरी आंखों को राहत मिलती है, ठंडक महसूस होती है। नमाज दीन का सतून है, यानी नमाज दीन में एक बुनियादी हैसियत रखता है, एक मीनार की हैसियत रखता है। नमाज जन्नत की कुंजी है, कुंजी का मतलब होता है चाबी, यानी नमाज जन्नत में दाखिल होने का जरिया है। आगे देखिए, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इरशाद कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसके बारे में क्या फरमाया है। जो कोई 5 वक्त नमाज पढ़ता है वो अल्लाह अज़्ज़ो वजल की हिफाजत में है, और जिसकी हिफाजत अल्लाह करता है उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यानी जो शख्स 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाते हैं, अल्लाह ताला उसे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखते हैं। जिस तरह से इसकी एक मिसाल देना चाहूँगी कि जिस तरह से हम किसी शख्स के लिए कोई काम करते हैं, आप घर से मिसाल ले लें, आप अपनी टीचर की मिसाल ले लें कि आप उनका काम करते हैं, वक्त पर काम करते हैं और बहुत अच्छे से यानी नीट एंड क्लीन तरीके से आप अपना काम करके उनको देते हैं, तो क्या होगा, आप उनकी नज़र में अच्छे बन जाएंगे ना। वो ख़ास आपके ऊपर नज़र रखेंगे, वो कोशिश करेंगे कि आप जो बात कहें आपकी उस बात को पूरा किया जाए, आपकी प्रोटेक्शन भी होगी उनके थ्रू, उनके ज़रिए से आपकी हिफाजत भी होगी। इसी तरह से अगर अल्लाह ताला की 5 वक्त इबादत की जाती है, 5 वक्त जब अल्लाह ताला बुलाते हैं अजान के ज़रिए से, तो नमाज पढ़ी जाती है, तो अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करते हैं, और जिसकी अल्लाह ताला हिफाजत करते हैं उसे कोई भी शख्स किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकता, चाहे वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले। आगे देखें, नमाज के चंद आदाब। आइए देख लेते हैं कि नमाज के आदाब कौन से हैं। बाकी के आदाब आपकी किताब में भी सफ़ा नंबर 27 पर मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जिन आदाब का जिक्र करेंगे वो 5 हैं। नमाज अदब एहतराम से पढ़नी चाहिए। ज़ाहिरी सी बात है, हम अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होकर अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए खड़े होते हैं, तो यकीनन हमें अदब के साथ और एहतराम के साथ को नमाज अदब और एहतराम के साथ नमाज को पढ़ना चाहिए। नमाज में ध्यान अल्लाह ताला की तरफ होना चाहिए। जब हम नमाज पढ़ रहे हों तो हमें पता होना चाहिए हम क्या पढ़ रहे हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं, हमारी इस इबादत का मकसद क्या है। इस तरह से हम ध्यान अल्लाह ताला की तरफ रख सकते हैं। नमाज सुकून और इत्मीनान से पढ़नी चाहिए। नमाज को जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि सुकून से पढ़ना चाहिए, इत्मीनान से पढ़ना चाहिए और दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ पढ़ना चाहिए। जल्दी नमाज पढ़ने वाले के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल्लाह ताला उस शख्स की नमाज को एक काले कपड़े में लपेट कर उसके मुंह पर मार देते हैं जिस शख्स ने बहुत जल्दी से, बहुत तेज़ी से नमाज को पढ़ा हो। क्यों? क्योंकि उससे उस नमाज का मकसद ही ख़त्म हो जाता है, उस इबादत का मकसद ही ख़त्म हो जाता है। इसलिए हमेशा इत्मीनान और सुकून के साथ इबादत को करना चाहिए। नमाज से पहले वज़ू लाजमी करें, ये भी आपको पता है कि नमाज पढ़ने से पहले वज़ू लाजमी है। नमाज अदा करते वक्त रुख खाना काबा की तरफ होना चाहिए, यानी हमारा चेहरा, हमारी जाए नमाज का रुख खाना काबा की तरफ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह ताला का घर है। नमाज के लिए बदन यानी जिस्म और जगह पाक साफ हो। जब हम किसी के घर जाते हैं, एज अ गेस्ट जाते हैं, तो हम कितने अच्छे से तैयार होकर जाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, नहा धोकर जाते हैं, बड़े अच्छे से बनकर जाते हैं। तो इसी तरह से हम इबादत के दौरान अल्लाह ताला के मेहमान होते हैं, तो हमें नमाज पढ़ते हुए भी अपने बदन का ख्याल रखना चाहिए कि वो पाक साफ हो, हम जहाँ जगह जिस जगह पर नमाज पढ़ रहे हैं वो जगह पाक साफ हो, और हम खुद भी पाक साफ हों, हमारे कपड़े भी पाक साफ होने चाहिए।
आगे देखिए, मुश्किल अल्फाज के मायने, यानी इस सबक में जितने भी मुश्किल अल्फाज हैं आप उनको ख़त कशीद करेंगे और उनके मायने लिखेंगे और उन्हें याद करेंगे, कॉपी पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अल्फाज हैं बाकायदगी, लाजमी तौर पर, सतून, बुनियाद या मीनार, नज़्म ज़ब्त, असूल, सुबह सादिक, फजर से पहले का वक्त, मुखातिब होना, बातचीत करना। आगे देखिए, हम देख लेते हैं कि हमने इस सबक में क्या पढ़ा था। सबक की दोहराई है। हमने मुश्किल अल्फाज के मायने जाने, नमाज के मुतालिक जाना, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात जाने, 5 नमाज़ों और उनके औकात के बारे में जाना, यानी उनके वक्त क्या हैं वो जाने, और नमाज के आदाब जाने। आपने सबक का बगौर मुताला करना है, मायने याद करने हैं, सबक के आखिर में दिए गए सवालात का मुताला करना है और जवाबात को सोचना है, ताकि अगले सबक के लिए आप पहले से तैयार हों और आपको पता हो कि किस सवाल का क्या जवाब है। उम्मीद करती हूँ सबक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।